صحیح بخاری کتاب کھیتی اور بٹائی کے متعلق باب پانی کی تقسیم اور جو کہتا ہے پانی کا حصہ خیرات کرنا اور ہبا کرنا اور اس کی وصیت کرنا جائز ہے وہ پانی بٹا ہوا ہو یا بن بٹا ہوا۔ حدیث نمبر 2351 ترجمہ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابو غسان نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو حازم نے بیان کیا اور ان سے سہل بن سعد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ اور پانی کا ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف ایک نوعمر لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور کچھ بڑے بوڑھے لوگ بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کیا تو اجازت دے گا کہ میں پہلے یہ پیالہ بڑوں کو دے دوں؟ اس پر اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کے جھوٹے میں سے اپنے حصہ کو اپنے سوا کسی کو نہیں دے سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ پہلے اسی کو دے دیا۔ صحیح بخاری کتاب مساقات کا بیان باب پانی کی تقسیم اور جو کہتا ہے پانی کا حصہ خیرات کرنا اور ہبا کرنا اور اس کی وصیت کرنا جائز ہے وہ پانی بٹا ہوا ہو یا بن بٹا ہوا۔ حدیث نمبر 2352 ترجمہ ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی ان سے زہری نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر میں پلی ہوئی ایک بکری کا دودھ دوہا گیا جو انس بن مالک ہی کے گھر میں پلی تھی۔ پھر اس کے دودھ میں اس کنویں کا پانی ملا کر جو انس کے گھر میں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا۔ جب اپنے منہ سے پیالہ آپ نے جدا کیا تو بائیں طرف ابو بکر تھے اور دائیں طرف ایک دیہاتی تھا۔ انہوں ڈرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیالہ دیہاتی کو نہ دے دیں، اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابو بکر کو دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اسی دیہاتی کو دیا جو آپ کی دائیں طرف تھا اور فرمایا کہ دائیں طرف والا زیادہ حقدار ہے پھر وہ جو اس کی داہنی طرف ہو۔ صحیح بخاری کتاب مساقات کا بیان باب اس کے بارے میں جس نے کہا کہ پانی کا مالک پانی کا زیادہ حقدار ہے۔ حدیث نمبر 2353 ترجمہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی انہیں ابو الزناد نے انہیں ارج نے اور ان سے ابو حریرہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے ہوئے پانی سے کسی کو اس لیے نہ روکا جائے کہ اس طرح جو ضرورت سے زیادہ گھاس ہو وہ بھی رکی رہے۔ صحیح بخاری کتاب مساقات کا بیان باب اس کے بارے میں جس نے کہا کہ پانی کا مالک پانی کا زیادہ حقدار ہے۔ حدیث نمبر 2354 ترجمہ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے ابن مسیب اور ابو سلمہ نے اور ان سے ابو حریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالتو پانی سے کسی کو اس غرض سے نہ روکو کہ جو گھاس ضرورت سے زیادہ ہو اسے بھی روک لو۔ صحیح بخاری کتاب مساقات کا بیان باب جس نے اپنی ملک میں کوئی کنواں کھودا اس میں کوئی گر کر مر جائے تو اس پر تاوان نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 2355 ترجمہ ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا کہا کہ ہم کو عبید اللہ بن موسیٰ نے خبر دی انہیں اسرائیل نے انہیں ابو سین نے انہیں ابو صالح نے اور ان سے ابو حریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان میں مرنے والے کا تاوان نہیں میں گر کر مر جانے والے کا تاوان نہیں، اور کسی کا جانور اگر کسی آدمی کو مارے تو اس کا تاوان نہیں، گرے ہوئی مال میں سے 5واں حصہ دینا ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب مساقات کا بیان باب کنویں کے بارے میں جھگڑنا اور اس کا فیصلہ۔ حدیث نمبر 2356 ترجمہ ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابو حمزہ نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے شقیق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی ایسی جھوٹی قسم کھائے جس کے ذریعہ وہ کسی مسلمان کے مال پر ناحق قبضہ کر لے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت زیادہ غضبناک ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ العمران کی یہ آیت نازل فرمائی الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ذریعہ دنیا کی تھوڑی دولت خریدتے ہیں آخر آیت تک۔ پھر اشعت آئے اور پوچھا کہ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود نے تم سے کیا حدیث بیان کی ہے؟ یہ آیت تو میرے بارے میں نازل ہوئی تھی، میرا ایک کنواں میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں تھا، پھر جھگڑا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تو اپنے گواہ لا۔ میں نے عرض کیا کہ گواہ تو میرے پاس نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فریق مخالف سے قسم لے لے۔ اس پر میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو قسم کھا بیٹھے گا۔
ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया और अल्लाह ताला ने भी इस बारे में ये आयत नाज़िल फरमाकर इसकी तस्दीक की। सही बुखारी किताब मसाक़ात का बयान बाब खूनी के बारे में झगड़ना और इसका फ़ैसला। हदीस नंबर 2357। तर्जुमा हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू हमज़ा ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे शकीक ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कोई ऐसी झूठी कसम खाए जिसके ज़रिया वो किसी मुसलमान के माल पर नाहक कब्ज़ा कर ले तो वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह ताला इस पर बहुत ज़्यादा ग़ज़बनाक होगा। और फिर अल्लाह ताला ने सूरत अल इमरान की ये आयत नाज़िल फरमाई, नज़ीम युश्तरून बहद अल्लाह वायमानम समना कलीला, जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी किस्म के ज़रिया दुनिया की थोड़ी दौलत ख़रीदते हैं। आखिर आयत तक। फिर अशत आए और पूछा कि अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह बिन मसूद ने तुमसे क्या हदीस बयान की है? ये आयत तो मेरे बारे में नाज़िल हुई थी। मेरा एक कौम मेरे चचाजाद भाई की ज़मीन में था। फिर झगड़ा हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि तो अपने गवाह ला। मैंने अर्ज़ किया कि गवाह तो मेरे पास नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर फ़रीक़ मुखालिफ से कसम ले ले। इस पर मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो कसम खा बैठेगा। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया और अल्लाह ताला ने भी इस बारे में ये आयत नाज़िल फरमाकर इसकी तस्दीक की। सही बुखारी किताब मसाक़ात का बयान बाब उस शख्स का गुनाह जिसने किसी मुसाफिर को पानी से रोक दिया। हदीस नंबर 2358। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, उनसे अमिश ने बयान किया कि मैंने अबू साला से सुना, वो बयान करते थे कि मैंने अबू हरीरा से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 तरह के लोग वो होंगे जिनकी तरफ क़यामत के दिन अल्लाह ताला नज़र भी नहीं उठाएगा और ना इन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। एक वो शख्स जिसके पास रास्ते में ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो और उसने किसी मुसाफिर को उसके इस्तेमाल से रोक दिया। दूसरा वो शख्स जो किसी हाकिम से बैत सिर्फ दुनिया के लिए करे कि अगर वो हाकिम उसे कुछ दे तो वो राज़ी रहे वरना खफा हो जाए। तीसरे वो शख्स जो अपना बेचने का सामान असर के बाद लेकर खड़ा हुआ और कहने लगा कि इस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, मुझे इस सामान की कीमत इतनी मिल रही थी। इस पर एक शख्स ने उसे सच समझा और इसकी बताई हुई कीमत पर इस सामान को ख़रीद लिया। फिर आपने इस आयत की तिलावत की, नज़ीम युश्तरून बहद अल्लाह वायमानम समना कलीला, जो लोग अल्लाह को दरमियान में देकर और झूठी कस्में खाकर दुनिया का थोड़ा सा माल मोल लेते हैं। आखिर तक। सही बुखारी किताब मसाक़ात का बयान बाब नहर का पानी रोकना। हदीस नंबर 2359। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, उनसे लीस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे रू ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने बयान किया कि एक अंसारी मर्द ने ज़ुबैर से हिरा के नाले में जिसका पानी मदीना के लोग खजूर के दरख्तों को दिया करते थे, अपने झगड़े को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। अंसारी ज़ुबैर से कहने लगा, पानी को आगे जाने दो, लेकिन ज़ुबैर को इससे इनकार था और यही झगड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबैर से फरमाया कि पहले अपना बाग संच ले, फिर अपने पड़ोसी भाई के लिए जल्दी जाने दे। इस पर अंसारी को गुस्सा आ गया और इन्होंने कहा, हम ज़ुबैर आपकी फूफी के लड़के हैं ना। बस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक का रंग बदल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ज़ुबैर, तुम सैराब कर लो, फिर पानी को इतनी देर तक रोके रखो कि वो मनडेरों तक चढ़ जाए। ज़ुबैर ने कहा, अल्लाह की कसम, मेरा तो ख्याल है कि ये आयत फ़िला वर्बकला यमनुन हत्ता यहकमुक फ़ीमा शजर बेनहम उसी बाब में नाज़िल हुई है। हरगिज़ नहीं, तेरे रब की कसम, ये लोग इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने झगड़ों में तुझको हाकिम ना तस्लीम कर लें। आखिर तक। सही बुखारी किताब मसाक़ात का बयान बाब नहर का पानी रोकना। हदीस नंबर 2360। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, उनसे लीस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे रू ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने बयान किया कि एक अंसारी मर्द ने ज़ुबैर से हिरा के नाले में जिसका पानी मदीना के लोग खजूर के दरख्तों को दिया करते थे, अपने झगड़े को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। अंसारी ज़ुबैर से कहने लगा, पानी को आगे जाने दो, लेकिन ज़ुबैर को इससे इनकार था और यही झगड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबैर से फरमाया कि पहले अपना बाग संच ले, फिर अपने पड़ोसी भाई के लिए जल्दी जाने दे। इस पर अंसारी को गुस्सा आ गया और इन्होंने कहा, हम ज़ुबैर आपकी फूफी के लड़के हैं ना।
बस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक का रंग बदल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ज़ुबैर, तुम सैराब कर लो, फिर पानी को इतनी देर तक रोके रखो कि वो मनडेरों तक चढ़ जाए। ज़ुबैर ने कहा, अल्लाह की कसम, मेरा तो ख्याल है कि ये आयत फ़िला वर्बकला यौमनुन हत्ता यहकमुक फ़ीमा शजर बेनहम उसी बाब में नाज़ल हुई है। हरगिज़ नहीं, तेरे रब की कसम, ये लोग इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने झगड़ों में तुझको हाकिम ना तस्लीम कर लीं आखिर तक। सही बुखारी किताब मसाक़ात का बयान। बाब जिसका खेत बुलंदी पर हो पहले वो अपने खेतों को पानी पिलाए। हदीस नंबर 2361। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं मुअम्मर ने, इन्हीं ज़हरी ने, उनसे रू ने बयान किया कि ज़ुबैर से एक अंसारी का झगड़ा हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ुबैर, पहले तुम अपना बाग सैराब कर लो, फिर पानी आगे के लिए छोड़ देना। इस पर अंसारी ने कहा कि ये आपकी फूफी के लड़के हैं। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुबैर, अपना बाग इतना सैराब कर लो कि पानी इसकी मनडेरों तक पहुंच जाए, इतने रोक रखो। ज़ुबैर ने कहा कि मेरा गुमान है कि ये आयत ला वर्बकला यौमनुन हत्ता यहकमुक फ़ीमा शजर बेनहम, हरगिज़ नहीं, तेरे रब की कसम, ये लोग इस वक्त तक मोमिन नहीं होंगे जब तक आपको अपने तमाम इख्तिलाफ़ात में हुक्म ना तस्लीम कर लीं। उसी बाब में नाज़ल हुई। सही बुखारी किताब मसाक़ात का बयान। बाब बुलंद खेत वाला टखनों तक पानी भर ले। हदीस नंबर 2362। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा कि हमको मुखलिद ने खबर दी, कहा कि मुझे इब्न जरेज ने खबर दी, कहा कि मुझसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे रू बिन ज़ुबैर ने बयान किया कि एक अंसारी मर्द ने ज़ुबैर से हिरा के नदी के बारे में, जिससे खजूरों के बाग सैराब हुआ करते थे, झगड़ा किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुबैर, तुम सैराब कर लो, फिर अपने पड़ोसी भाई के लिए जल्द पानी छोड़ देना। इस पर अंसारी ने कहा, जी हाँ, आपकी फूफी के बेटे हैं ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ज़ुबैर, तुम सैराब करो यहाँ तक कि पानी खेत की मेंढों तक पहुँच जाए। इस तरह आपने ज़ुबैर को उनका पूरा हक दिलवा दिया। ज़ुबैर कहते थे कि कसम अल्लाह की, ये आयत उसी बारे में नाज़ल हुई थी, ला वर्बकला यौमनुन हत्ता यहकमुक फ़ीमा शजर बेनहम, हरगिज़ नहीं, तेरे रब की कसम, इस वक्त तक ये ईमान वाले नहीं होंगे जब तक अपने जुमला इख्तिलाफ़ात में आपको हुक्म ना तस्लीम कर लीं। इब्न शहाब ने कहा कि अंसार और तमाम लोगों ने उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की बना पर कि सैराब करो और फिर इस वक्त तक रुक जाओ जब तक पानी मनडेरों तक ना पहुंच जाए, एक अंदाज़ा लगा लिया, यानी पानी टखनों तक भर जाए। सही बुखारी किताब मसाक़ात का बयान। बाब पानी पिलाने के सवाब का बयान। हदीस नंबर 2363। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तंसी ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं समी ने, इन्हीं अबूसाला ने और इन्हीं अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स जा रहा था कि उसे सख्त प्यास लगी, उसने एक कुएं में उतर कर पानी पिया, फिर बाहर आया तो देखा कि एक कुत्ता हानप रहा है और प्यास की वजह से कीचड़ चाट रहा है। इसने अपने दिल में कहा, ये भी उस वक्त ऐसे ही प्यास में मुब्तला है जैसे अभी मुझे लगी हुई थी। चुनंचे वो फिर कुएं में उतरा और अपने चमड़े के मौजे को पानी से भरकर उसे अपने मुंह से पकड़े हुए ऊपर आया और कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह ताला ने उसके इस काम को कबूल किया और इसकी मग़फ़िरत फरमाई। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया हमें चौपाओं पर भी अजर मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जानदार में सवाब है। इस रिवायत की मुताबत हमाद बिन सलमा और रबी बिन मुस्लिम ने मोहम्मद बिन ज़ियाद से की है। सही बुखारी किताब मसाक़ात का बयान। बाब पानी पिलाने के सवाब का बयान। हदीस नंबर 2364। तर्जुमा। हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान किया, कहा कि हमसे नाफा बिन उम ने बयान किया, उनसे इब्न अबी मलकिया ने और उनसे असमा बिन अबी बकर ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ी, फिर फरमाया, अभी दोज़ख मुझसे इतनी करीब आ गई थी कि मैंने चौंक कर कहा, ए रब, किया मैं भी इन्हीं में से हूँ। इतने में दोज़ख में मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी। असमा ने बयान किया, मुझे याद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस औरत को एक बिल्ली नोच रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि इस पर इस अज़ाब की क्या वजह है। आपके साथ वाले फरिश्तों ने कहा कि इस औरत ने इस बिल्ली को इतनी देर तक बांधे रखा कि वो भूख के मारे मर गई। सही बुखारी किताब मसाक़ात का बयान। बाब पानी पिलाने के सवाब का बयान। हदीस नंबर 2365। तर्जुमा।
हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक रा ने बयान किया, उनसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को अजाब एक बिल्ली की वजह से हुआ जिसे उसने इतनी देर तक बांधे रखा था कि वो भूख की वजह से मर गई, और वो औरत उसी वजह से दोज़ख में दाखिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इससे फरमाया था और अल्लाह ताला ही ज़्यादा जानने वाला है कि जब तूने इस बिल्ली को बांधे रखा इस वक्त तक ना तूने उसे खिलाया ना पिलाया और ना छोड़ा कि वो ज़मीन के कीड़े मकोड़े ही खाकर अपना पेट भर लेती। सही बुखारी। किताब मसाक़ात का बयान। बाब जिनके नज़दीक हौज़ वाला और मशक का मालिक ही अपने पानी का ज़्यादा हक़दार है। हदीस नंबर 2366। तर्जुमा। हमसे क़तीबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ ने बयान किया, उनसे अबू हाज़म ने और उनसे सहल बिन साद ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक प्याला पेश किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नोश फरमाया। आपकी दाएं तरफ एक लड़का था जो हाज़रीन में सबसे कम उम्र था। बड़ी उम्र वाले सहाबा आपकी बाएं तरफ थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लड़के, क्या तुम्हारी इजाज़त है कि मैं इस प्याले का बचा हुआ पानी बूढ़ों को दूँ? इसने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मैं तो आपका झूठा अपने हिस्सा का किसी को देने वाला नहीं हूँ। आखिर आपने वो प्याला उसी को दे दिया। सही बुखारी। किताब मसाक़ात का बयान। बाब जिनके नज़दीक हौज़ वाला और मशक का मालिक ही अपने पानी का ज़्यादा हक़दार है। हदीस नंबर 2367। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा कि हमसे गंदर ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन ज़ियाद ने, इन्होंने अबू हरीरा से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं क़ियामत के दिन अपने हौज़ से कुछ लोगों को इस तरह हानक दूंगा जैसे अजनबी ऊँट हौज़ से हानक दे जाते हैं। सही बुखारी। किताब मसाक़ात का बयान। बाब जिनके नज़दीक हौज़ वाला और मशक का मालिक ही अपने पानी का ज़्यादा हक़दार है। हदीस नंबर 2368। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमको अब्दुर्रज़ाक़ ने ख़बर दी, कहा कि हमको मुअम्मर ने ख़बर दी, इन्हें अय्यूब और कसीर बिन कसीर ने, दोनों की रिवायतों में एक दूसरे की बनिस्बत कमी और ज़ियादती है, और उनसे सईद बिन जबीर ने कि इब्न अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा हाजिरा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह रहम फरमाए कि अगर इन्होंने ज़मज़म को छोड़ दिया होता, या यूँ फरमाया कि अगर वो ज़मज़म से चलो भर भर कर ना लेती तो वो एक बहता चश्मा होता। फिर जब कबीला जरहम के लोग आए और हाजिरा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमें अपने पड़ोस में क़याम की इजाज़त दी, तो इन्होंने उसे कबूल कर ली इस शर्त पर कि पानी पर उनका कोई हक़ ना होगा। कबीला वालों ने ये शर्त मान ली थी। सही बुखारी। किताब मसाक़ात का बयान। बाब जिनके नज़दीक हौज़ वाला और मशक का मालिक ही अपने पानी का ज़्यादा हक़दार है। हदीस नंबर 2369। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे इमरू बिन दीनार ने, उनसे अबवसाला समान ने, और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 तरह के आदमी ऐसे हैं जिनसे क़ियामत के दिन अल्लाह ताला बात भी ना करेगा और ना उनकी तरफ नज़र उठा के देखेगा। वो शख्स जो किसी सामान के मुताल्लिक़ कसम खाए कि उसे इसकी कीमत इससे ज़्यादा दी जा रही थी जितनी अब दी जा रही है, हालांकि वो झूठा है। वो शख्स जिसने झूठी कसम इसके बाद इसलिए खाई कि इसके ज़रिया एक मुसलमान के माल को हज़म कर जाए। वो शख्स जो अपनी ज़रूरत से बचे पानी से किसी को रोके। अल्लाह ताला फरमाएगा कि आज मैं अपना फ़ज़ल उसी तरह तुम्हें नहीं दूंगा जिस तरह तुमने एक ऐसी चीज़ के फालतू हिस्से को नहीं दिया था जिसे खुद तुम्हारे हाथों ने बनाया भी ना था। अली ने कहा कि हमसे सुफियान ने इमरू से कई मरतबा बयान किया कि इन्होंने अबवसाला से सुना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस हदीस की सनद पहुंचाते थे। सही बुखारी। किताब मसाक़ात का बयान। बाब अल्लाह और इसके रसूल के सिवा कोई और चरागा महफूज नहीं कर सकता। हदीस नंबर 2370। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा कि हमसे लीस ने बयान किया, उनसे यूनुस ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन अतबा ने और उनसे इब्न अब्बास ने कि सिब बिन जिसामा लैसी ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चरागा अल्लाह और इसका रसूल ही महफूज कर सकता है। इब्न शहाब ने बयान किया कि हम तक ये भी पहुंचा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नक़ी में चरागा बनवाई थी और उन्होंने सरफ और रब्ज़ा को चरागा बनाया। सही बुखारी। किताब मसाक़ात का बयान। बाब नहरों में से आदमी और जानवर सब पानी पी सकते हैं। हदीस नंबर 2371। तर्जुमा।
हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक बिन अनस ने खबर दी, इन्हीं ज़ैद बिन असलम ने, इन्हीं अबू साला समान ने और इन्हीं अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़ा एक शख्स के लिए बाइस सवाब है, दूसरे के लिए बचाव है और तीसरे के लिए वबाल है। जिसके लिए घोड़ा अजर वाउ सवाब है, वो शख्स है जो अल्लाह की राह के लिए उसको पाले, वो उसे किसी हरियाले मैदान में बांधे। रावी ने कहा, या किसी बाग में, तो जिस कद्र भी वो इस हरियाले मैदान में या बाग में चरेगा, इसकी नेकियों में लिखा जाएगा। अगर इत्तिफाक से इसकी रस्सी टूट गई और घोड़ा एक या दो मरतबा आगे के पाँव उठाकर कूदा तो इसके आसार कदम और लीद भी मालिक की नेकियों में लिखे जाएंगे। और अगर वो घोड़ा किसी नदी से गुजरे और इसका पानी पे ख्वाह मालिक ने इसे पिलाने का इरादा ना किया हो तो भी ये इसकी नेकियों में लिखा जाएगा। तो इस नीयत से पाला जाने वाला घोड़ा इन्हीं वजूह से बाइस सवाब है। दूसरा शख्स वो है जो लोगों से बेनियाज रहने और उनके सामने 10 सवाल बढ़ाने से बचने के लिए घोड़ा पाले, फिर इसकी गर्दन और इसकी पीठ के सिलसिला में अल्लाह ताला के हक़ को भी फरामोश ना करे तो ये घोड़ा अपने मालिक के लिए पर्दा है। तीसरा शख्स वो है जो घोड़े को फ़ख्र, दिखावे और मुसलमानों की दुश्मनी में पाले, तो ये घोड़ा इसके लिए वबाल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गधों के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उसके मुताल्लिक़ कोई हुक्म वही से मालूम नहीं हुआ सिवा इस जामा आयत के मन यामल मुसक़ाल ज़रा ख़ीरा यरा सितारा वमन यामल मुसक़ाल ज़रा शरा यरा, जो शख्स ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा उसका बदला पाएगा और जो ज़र्रा बराबर बुराई करेगा उसका बदला पाएगा। सही बुखारी किताब मसाक़ात का बयान। बाब नहरों में से आदमी और जानवर सब पानी पी सकते हैं। हदीस नंबर 2372। तर्जुमा। हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे रबिया बिन अबी अबदाल रहमन ने, उनसे मनबत के ग़ुलाम यजीद ने और उनसे ज़ैद बिन खालिद ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया और आपसे लुक़ता, रास्ते में किसी की गुम हुई चीज़ जो पा गई हो, के मुताल्लिक़ पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी थैली और इसके बंधन की खूब जांच कर लो, फिर 1 साल तक इसका ऐलान करते रहो। इस अरसे में अगर इसका मालिक आ जाए तो उसे दे दो, वरना फिर वो चीज़ तुम्हारी है। साइल ने पूछा, और गुमशुदा बकरी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हारी है या तुम्हारे भाई की है या फिर भैरये की है? साइल ने पूछा, और गुमशुदा ऊँट? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें इससे क्या मतलब? उसके साथ इसे सैराब रखने वाली चीज़ है और इसका घर है, पानी पर भी वो जा सकता है और दरख्त के पत्ते भी खा सकता है यहाँ तक कि उसका मालिक इसको पा जाए। सही बुखारी किताब मसाक़ात का बयान। बाब लकड़ी और घास बेचना। हदीस नंबर 2373। तर्जुमा। हमसे माली बिन असद ने बयान किया, कहा कि हमसे वहीब ने बयान किया, उनसे हाशिम ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे ज़ुबैर बिन अवाम ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स रस्सी लेकर लकड़ियों का घटा लाए फिर उसे बेचे और इस तरह अल्लाह ताला इसकी आबरू महफूज रखे तो ये इससे बेहतर है कि वो लोगों के सामने हाथ फैलाए और भीख उसे दी जाए या ना दी जाए, उसकी भी कोई उम्मीद ना हो। सही बुखारी किताब मसाक़ात का बयान। बाब लकड़ी और घास बेचना। हदीस नंबर 2374। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा कि हमसे लीस ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब, उनसे अबदाल रहमन बिन औफ के ग़ुलाम अबू अबीद ने, और इन्होंने अबू हरीरा से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स लकड़ियों का गुठा अपनी पीठ पर बेचने के लिए फ़रे तो वो इससे अच्छा है कि किसी के सामने हाथ फैलाए, फिर ख्वाह उसे कुछ दे या ना दे। सही बुखारी किताब मसाक़ात का बयान। बाब लकड़ी और घास बेचना। हदीस नंबर 2375। तर्जुमा। हमसे इब्राहिम बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमको हश्शाम ने खबर दी, इन्हीं इब्न जरेज ने खबर दी, कहा कि मुझे इब्न शहाब ने खबर दी, इन्हीं ज़ैद अलाबिदीन अली बिन हसीन बिन अली ने, उनसे उनके वालिद हसीन बिन अली ने कि अली बिन अबी तालिब ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदर की लड़ाई के मौका पर मुझे एक जवान ओनटनी गनीमत में मिली थी और एक दूसरी ओनटनी मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत फरमाई थी। एक दिन एक अंसारी सहाबी के दरवाजे पर मैं उन दोनों को इस ख्याल से बांधे हुए था कि उनकी पीठ पर अज़फ़र, अरब की एक खुशबूदार घास जिसे सुनार वगैरह इस्तेमाल करते थे, रखकर बेचने ले जाऊंगा। बनी क़ीमता का एक सुनार भी मेरे साथ था। इस तरह ख्याल ये था कि इसकी आमदनी से फ़ातिमा, जिनसे मैं निकाह करने वाला था, इनका वलीमा करूंगा। हमज़ा बिन अब्दाल मतलब उसी अंसारी के घर में शराब पी रहे थे। उनके साथ एक गाने वाली भी थी। उसने जब ये मिसरा पढ़ा, ए हमज़ा,
उठो, फरबा जवान औनटनियों की तरफ बढ़। हमजा जोश में तलवार लेकर उठे और दोनों औनटनियों के कोहान चीर दिए, उनके पीठ फाड़ डाले और उनकी कलीजी निकाल ली। इब्न जरेज ने बयान किया कि मैंने इब्न शहाब से पूछा, किया कोहान का गोश्त भी काट लिया था? तो इन्होंने बयान किया कि इन दोनों के कोहान काट लिए और इन्हें ले गए। इब्न शहाब ने बयान किया कि अली ने फरमाया, मुझे ये देखकर बड़ी तकलीफ हुई। फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपकी खिदमत में उस वक्त ज़ैद बिन हारसा भी मौजूद थे। मैंने आपको इस वाक़या की इत्तिला दी तो आप तशरीफ़ लाए। ज़ैद भी आपके साथ ही थे और मैं भी आपके साथ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमज़ा के पास पहुँचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खफगी ज़ाहिर फरमाई तो हमज़ा ने नज़र उठाकर कहा, तुम सब मेरे बाप दादा के ग़ुलाम हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उल्टे पाँव लौटकर उनके पास से चले आए। ये शराब की हुर्मत से पहले का किस्सा है। सही बुखारी किताब मसाक़ात का बयान। बाब क़ता तराज़ी बतौर जागीर देने का बयान। हदीस नंबर 2376। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा कि हमसे हमाद ने बयान किया, उनसे यही बिन सईद ने बयान किया, कहा कि मैंने अनस से सुना, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरैन में कुछ क़ता तराज़ी बतौर जागीर अंसार को देने का इरादा किया तो अंसार ने अर्ज़ किया कि हम जब लेंगे कि आप हमारे मुहाजिर भाइयों को भी उसी तरह के क़ता इनायत फरमाएं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद दूसरे लोगों को तुम पर तरजीह दी जाया करेगी तो उस वक्त तुम सब्र करना, यहाँ तक कि हमसे आखिरत में आकर मुलाकात करो। सही बुखारी किताब मसाक़ात का बयान। बाब क़ता तराज़ी बतौर जागीर देकर उनको सनद लिख देना। हदीस नंबर 2377। तर्जुमा। बाब क़ता तराज़ी बतौर जागीर देकर उनको सनद लिख देना। और लीस ने यही बिन सईद से बयान किया और इन्होंने अनस से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को बुलाकर बहरैन में इन्हें क़ता तराज़ी बतौर जागीर देनी चाहे तो इन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, अगर आपको ऐसा करना ही है तो हमारे भाई क़ुरैश मुहाजिरीन को भी उसी तरह के क़तात की सनद लिख दीजिए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी ज़मीन ही ना थी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, मेरे बाद तुम देखोगे कि दूसरे लोगों को तुम पर मुक़द्दम किया जाएगा, तो उस वक्त तुम मुझसे मिलने तक सब्र किए रहना। सही बुखारी किताब मसाक़ात का बयान। बाब औनटनी को पानी के पास दोहना। हदीस नंबर 2378। तर्जुमा। हमसे इब्राहिम बिन अलमनज़र ने बयान किया, कहा कि हमसे मोहम्मद बिन फली ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, उनसे हलाल बिन अली ने, उनसे अबदाल रहमान बिन अबी उमरा ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका हक़ यह है कि उनका दूध पानी के पास दोहा जाए। सही बुखारी किताब मसाक़ात का बयान। बाब बाग में से गुजरने का हक़ या खजूर के दरख्तों में पानी पिलाने का हिस्सा। हदीस नंबर 2379। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा कि हमसे लीस ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे उनके बाप ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पैवनदकारी के बाद अगर किसी शख्स ने अपना खजूर का दरख्त बेचा तो इस साल की फसल का फल बेचने वाले ही का रहता है। हम अगर ख़रीदार शर्त लगा दे कि फल भी ख़रीदार ही का होगा तो ये सूरत अलग है, और अगर किसी शख्स ने कोई माल वाला ग़ुलाम बेचा तो वो माल बेचने वाले का होता है। हम अगर ख़रीदार शर्त लगा दे तो ये सूरत अलग है। ये हदीस इमाम मालिक से, इन्होंने नाफा से, इन्होंने इब्न उमर से भी मरूए है, इसमें सिर्फ ग़ुलाम का जिक्र है। सही बुखारी किताब मसाक़ात का बयान। बाग में से गुजरने का हक़ या खजूर के दरख्तों में पानी पिलाने का हिस्सा। हदीस नंबर 2380। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे यही बिन सईद ने, उनसे नाफा ने, उनसे इब्न उमर ने और उनसे ज़ैद बिन साबित ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली के सिलसिला में इसकी रुख़सत दी थी कि अंदाज़ा करके खुश्क खजूर के बदले बेचा जा सकता है। सही बुखारी किताब मसाक़ात का बयान। बाग में से गुजरने का हक़ या खजूर के दरख्तों में पानी पिलाने का हिस्सा। हदीस नंबर 2381। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्न ईना ने बयान किया, उनसे इब्न जरेज ने, उनसे अता ने, इन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखाबिरा, मुहाकला और मजाबना से मना फरमाया था। उसी तरह फल को पुख्ता होने से पहले बेचने से मना फरमाया था, और ये कि मेवा या गल्ला जो दरख्त पर लगा हो, दीनार व दिरहम ही के बदले बेचा जाए।
अलबत्ता अराया की इजाज़त दी है। सही बुखारी किताब मसाक़ात का बयान बाब बाग में से गुज़रने का हक़ या खजूर के दरख्तों में पानी पिलाने का हिस्सा। हदीस नंबर 2382। तर्जुमा हमसे यही बिन क़ज़िया ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, इन्हीं दाऊद बिन हसीन ने, इन्हीं अबू अहमद के ग़ुलाम अबू सुफ़ियान ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अराया की अंदाज़ा करके खुश्क खजूर के बदले 5 वसक़ से कम, या ये कहा कि 5 वसक़ के अंदर इजाज़त दी है। इसमें शक दाऊद बिन हसीन को हवा बियरी का बयान पीछे मुफस्सल हो चुका है। सही बुखारी किताब मसाक़ात का बयान बाग में से गुज़रने का हक़ या खजूर के दरख्तों में पानी पिलाने का हिस्सा। हदीस नंबर 2383। तर्जुमा हमसे ज़करिया बिन यही ने बयान किया, कहा कि हमको अब्बासामा ने ख़बर दी, कहा कि मुझे वलीद बिन कसीर ने ख़बर दी, कहा कि मुझे बनी हारसा के ग़ुलाम बशीर बिन यासार ने ख़बर दी, उनसे राफ़े बिन खदीज और सहल बिन अबी हसमा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मज़ाबना यानी दरख्त पर लगे हुए खजूर को खुश्की हुई खजूर के बदले बेचने से मना फरमाया, अरी करने वालों के अलावा कि इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी थी। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा कि इब्न इसहाक़ ने कहा कि मुझसे बशीर ने उसी तरह ये हदीस बयान की थी। ये तालीक़ है क्योंकि इमाम बुखारी ने इब्न इसहाक़ को नहीं पाया। हाफिज़ ने कहा कि मुझको ये तालीक़ मौसला नहीं मिली। सही बुखारी किताब मसाक़ात का बयान बाग में से गुज़रने का हक़ या खजूर के दरख्तों में पानी पिलाने का हिस्सा। हदीस नंबर 2384। तर्जुमा हमसे ज़करिया बिन यही ने बयान किया, कहा कि हमको अब्बासामा ने ख़बर दी, कहा कि मुझे वलीद बिन कसीर ने ख़बर दी, कहा कि मुझे बनी हारसा के ग़ुलाम बशीर बिन यासार ने ख़बर दी, उनसे राफ़े बिन खदीज और सहल बिन अबी हसमा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मज़ाबना यानी दरख्त पर लगे हुए खजूर को खुश्की हुई खजूर के बदले बेचने से मना फरमाया, अरी करने वालों के अलावा कि इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी थी। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा कि इब्न इसहाक़ ने कहा कि मुझसे बशीर ने उसी तरह ये हदीस बयान की थी। ये तालीक़ है क्योंकि इमाम बुखारी ने इब्न इसहाक़ को नहीं पाया। हाफिज़ ने कहा कि मुझको ये तालीक़ मौसला नहीं मिली। सही बुखारी किताब क़र्ज़ लेने और क़र्ज़ अदा करने का बयान बाब जो शख्स कोई चीज़ क़र्ज़ ख़रीदे और इसके पास कीमत ना हो या उस वक्त मौजूद ना हो तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 2385। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ बैकंदी ने बयान किया, कहा कि हमको जरीर ने ख़बर दी, इन्हीं मगीरा ने, इन्हीं शुबी ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ग़ज़वा में शरीक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ऊँट के बारे में तुम्हारी क्या राय है, क्या तुम उसे बेचोगे। मैंने कहा हूँ, चुनाचा मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेच दिया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो सुबह ऊँट को लेकर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसकी कीमत अदा कर दी। सही बुखारी किताब क़र्ज़ लेने और क़र्ज़ अदा करने का बयान बाब जो शख्स कोई चीज़ क़र्ज़ ख़रीदे और इसके पास कीमत ना हो या उस वक्त मौजूद ना हो तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 2386। तर्जुमा हमसे माली बिन असद ने बयान किया, उनसे अबदाल वाहिद ने बयान किया, उनसे अमिश ने बयान किया, इन्होंने बयान किया कि इब्राहीम की खिदमत में हमने भी सलीम में रहन का जिक्र किया, तो इन्होंने बयान किया कि मुझसे असूद ने बयान किया और उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से गल्ला एक ख़ास मुद्दत के क़र्ज़ पर ख़रीदा और अपनी लोहे की ज़िरह इसके पास रहन रख दी। सही बुखारी किताब क़र्ज़ लेने और क़र्ज़ अदा करने का बयान बाब जो शख्स लोगों का माल अदा करने की नीयत से ले और जो हज़म करने की नीयत से ले। हदीस नंबर 2387। तर्जुमा हमसे अब्दुल-अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ओवैसी ने बयान किया, उनसे सुलेमान बिन बिलाल ने बयान किया, उनसे सूर बिन ज़ैद ने, उनसे अबू गीस ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई लोगों का माल क़र्ज़ के तौर पर अदा करने की नीयत से लेता है तो अल्लाह ताला भी उसकी तरफ से अदा करेगा और जो कोई ना देने के लिए ले तो अल्लाह ताला भी इसको तबाह कर देगा। सही बुखारी किताब क़र्ज़ लेने और क़र्ज़ अदा करने का बयान बाब क़र्ज़ों का अदा करना। हदीस नंबर 2388। तर्जुमा हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू शहाब ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे ज़ैद बिन वहब ने और उनसे अबू ज़र ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा, आपकी मुराद उहुद पहाड़ को देखने से थी।
तो फरमाया कि मैं ये भी पसंद नहीं करूँगा कि उहुद पहाड़ सोने का हो जाए तो इसमें से मेरे पास 1 दीनार के बराबर भी 3 दिन से ज़्यादा बाकी रहे, सिवा इस दीनार के जो मैं किसी का कर्ज अदा करने के लिए रख लूँ। फिर फरमाया, दुनिया में देखो जो ज़्यादा माल वाले हैं वही मुहताज हैं, सिवा उनके जो अपने माल व दौलत को यूं और यूं खर्च करें। अबू शहाब रावी ने अपने सामने और दाएं तरफ और बाएं तरफ इशारा किया, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद कम होती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहीं ठहरे रहो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी दूर आगे की तरफ बढ़े। मैंने कुछ आवाज़ सुनी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से बातें कर रहे हों। मैंने चाहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाऊं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान याद आया कि यहीं इस वक्त तक ठहरे रहना जब तक मैं ना आ जाऊं। इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, अभी मैंने कुछ सुना था? या रावी ने ये कहा कि मैंने कोई आवाज़ सुनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने भी सुना? मैंने अर्ज़ किया कि हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जबराइल अलैहिस्सलाम आए थे और कह गए हैं कि तुम्हारी उम्मत का जो शख्स भी इस हालत में मरे कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो तो वो जन्नत में दाखिल होगा। मैंने पूछा कि अगरचे वो इस तरह के गुनाह करता रहा हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हूँ। सही बुखारी, किताब कर्ज लेने और कर्ज अदा करने का बयान। बाब कर्जों का अदा करना। हदीस नंबर 2389। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन शबीब बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे हमारे वालिद ने बयान किया, उनसे यूनुस ने के इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा ने बयान किया, और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे पास उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना हो तब भी मुझे ये पसंद नहीं कि 3 दिन गुजर जाएं और इस सोने का कोई हिस्सा मेरे पास रह जाए, सिवा इसके जो मैं किसी कर्ज के देने के लिए रख छोड़ूं। इसकी रिवायत सालेह और अकील ने ज़हरी से की है। सही बुखारी, किताब कर्ज लेने और कर्ज अदा करने का बयान। बाब कर्ज लेना। हदीस नंबर 2390। तर्जुमा। हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, इन्हीं सलमा बिन कहल ने खबर दी, कहा कि मैंने अबू सलिमा से सुना, वो हमारे घर में अबू हरीरा से हदीस बयान कर रहे थे कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने कर्ज का तकाजा किया और सख्त सुस्त कहा। सहाबा ने उसको सज़ा देनी चाहिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे कहने दो। साहब हक़ के लिए कहने का हक़ होता है और इसे एक ऊँट खरीद कर दे दो। लोगों ने अर्ज़ किया कि इसके ऊँट से जो उसने आपको कर्ज दिया था अच्छी उम्र ही का ऊँट मिल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही खरीद के उसे दे दो, क्योंकि तुम में अच्छा वही है जो कर्ज अदा करने में सबसे अच्छा हो। हदीस और बाब की मुताबिक़त ज़ाहिर है। सही बुखारी, किताब कर्ज लेने और कर्ज अदा करने का बयान। बाब तकाज़ा में नरमी करना। हदीस नंबर 2391। तर्जुमा। हमसे मुस्लिम ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अब्दुल मलक ने, उनसे रबई बिन हराश ने और उनसे हुज़ैफ़ा ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, कब्र में इससे सवाल हुआ, तुम्हारे पास कोई नेकी है? इसने कहा कि मैं लोगों से खरीदू फरोख्त करता था, और जब किसी पर मेरा कर्ज होता तो मैं मालदारों को मोहलत दिया करता था और तंग दस्तों के कर्ज को मुआफ़ कर दी करता था, इस पर इसकी बख्शिश हो गई। अबू मसूद ने बयान किया कि मैंने यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। सही बुखारी, किताब कर्ज लेने और कर्ज अदा करने का बयान। बाब किया बदला में कर्ज वाले ऊँट से ज़्यादा उम्र वाला ऊँट दिया जा सकता है। हदीस नंबर 2392। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उनसे यही क़ितान ने, उनसे सुफियान सोरी ने कि मुझसे सलमा बिन कहल ने बयान किया, उनसे अबू सलिमा ने और उनसे अबू हरीरा ने कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना कर्ज का ऊँट मांगने आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि उसे इसका ऊँट दे दो। सहाबा ने अर्ज़ किया कि कर्ज ख्वाह के ऊँट से अच्छी उम्र का ही ऊँट मिल रहा है। इस पर उस शख्स कर्ज ख्वाह ने कहा, मुझे तुमने मेरा पूरा हक़ दिया, तुम्हें अल्लाह तुम्हारा हक़ पूरा दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे वही ऊँट दे दो, क्योंकि बेहतरीन शख्स वो है जो सबसे ज़्यादा बेहतर तरीक़ा पर अपना कर्ज अदा करता हो। सही बुखारी, किताब कर्ज लेने और कर्ज अदा करने का बयान। बाब कर्ज अच्छी तरह से अदा करना। हदीस नंबर 2393। तर्जुमा।
हमसे अबू नईम ने बयान किया, उनसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे अबू सलिमा ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक शख्स का एक खास उम्र कम कर्ज था। वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकाजा करने आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे दे दो। सहाबा ने तलाश किया लेकिन ऐसा ही मिल सका जो कर्ज ख्वाह के से अच्छी उम्र का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही दे दो। इस पर उस शख्स ने कहा कि आपने मुझे मेरा हक पूरी तरह दिया, अल्लाह आपको भी उसका बदला पूरा पूरा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में बेहतर आदमी वो है जो कर्ज अदा करने में भी सबसे बेहतर हो। सही बुखारी किताब कर्ज लेने और कर्ज अदा करने का बयान। बाब कर्ज अच्छी तरह से अदा करना। हदीस नंबर 2394। तर्जुमा हमसे खलाद ने बयान किया, उनसे मुसर ने बयान किया, उनसे महारिब बिन दिसार ने बयान किया और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ रखते थे। मुसर ने बयान किया कि मेरा ख्याल है कि इन्होंने चाशत के वक्त का जिक्र किया कि उस वक्त खिदमत नबवी में हाजिर हुआ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 रकत नमाज पढ़ लो। मेरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कर्ज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अदा किया, बल्कि ज़्यादा भी दे दिया। सही बुखारी किताब कर्ज लेने और कर्ज अदा करने का बयान। बाब अगर मखरूज कर्ज ख्वाह के हक़ में कम अदा करे। हदीस नंबर 2395। तर्जुमा हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा कि हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं यूनुस ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने बयान किया, उनसे कब बिन मालिक ने बयान किया और इन्हीं जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने खबर दी कि उनके वालिद अब्दुल्लाह उहुद के दिन शहीद कर दिए गए थे। इन पर कर्ज चला आ रहा था। कर्ज ख्वाह ने अपने हक़ के मुतालबे में सख्ती इख्तियार की तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त फरमा लिया कि वो मेरे बाग की खजूर ले लें और मेरे वालिद को मुआफ़ कर दें। लेकिन कर्ज ख्वाह ने इससे इनकार किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मेरे बाग का मेवा नहीं दिया और फरमाया कि हम सुबह को तुम्हारे बाग में आएंगे। चुनाचा जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बाग में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्तों में फिरते रहे और इसके मेवे में बरकत की दुआ फरमाते रहे। फिर मैंने खजूर तोड़ी और उनका तमाम कर्ज अदा करने के बाद भी खजूर बाकी बच गई। सही बुखारी किताब कर्ज लेने और कर्ज अदा करने का बयान। बाब अगर कर्ज अदा करते वक्त खजूर के बदल इतनी ही खजूर या और कोई मेवा या अनाज के बदल बराबर नाप तोलकर या अंदाज़ा करके दे तो दुरुस्त है। हदीस नंबर 2396। तर्जुमा हमसे इब्राहिम बिन अलमनज़र ने कहा कि हमसे अनस ने बयान किया, उनसे हश्शाम ने, उनसे वहब बिन किसान ने और इन्हीं जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने खबर दी कि जब उनके वालिद शहीद हुए तो एक यहूदी का 30 वसक़ कर्ज अपने ऊपर छोड़ गए। जाबिर ने इससे मोहलत मांगी लेकिन वो नहीं माना। फिर जाबिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस यहूदी अबू शहम से मोहलत देने की सिफारिश करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और यहूदी से ये फरमाया कि जाबिर के बाग के फल जो भी हूँ इस कर्ज के बदले में ले ले। जो उनके वालिद के ऊपर इसका है उसने इससे भी इनकार किया। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में दाखिल हुए और इसमें चलते रहे। फिर जाबिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाग का फल तोड़ के इसका कर्ज अदा करो। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो इन्होंने बाग की खजूरें तोड़ीं और यहूदी का 30 वसक़ अदा कर दी। 17 वसक़ इसमें से बच भी रहा। जाबिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए ताकि आपको भी ये इत्तिला दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त असर की नमाज़ पढ़ रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ारिग़ हुए तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी खबर इब्न ख़िताब को भी कर दो। चुनाचा जाबिर उम्र के यहाँ गए। उन्होंने फरमाया मैं तो उसी वक्त समझ गया था जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में चल रहे थे कि इसमें ज़रूर बरकत हो गई। सही बुखारी किताब कर्ज लेने और कर्ज अदा करने का बयान। बाब कर्ज से अल्लाह की पनाह मांगना। हदीस नंबर 2397। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें शोएब ने खबर दी, वो ज़हरी से रिवायत करते हैं। दूसरी सनद हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे भाई अबदाल हमीद ने बयान किया, उनसे सुलेमान ने, उनसे मोहम्मद बिन अबी अतीक ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे रू ने बयान किया और इन्हें आयशा ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में दुआ करते तो ये भी कहते, ऐ अल्लाह
मैं गुनाह और कर्ज से तेरी पनाह मांगता हूँ। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप कर्ज से इतनी पनाह मांगते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जब आदमी मकरूज़ होता है तो झूठ बोलता है और वादा करके उसकी खिलाफ वर्जी करता है। सही बुखारी। किताब कर्ज लेने और कर्ज अदा करने का बयान। बाब कर्जदार की नमाज जनाजा का बयान। हदीस नंबर 2398। तर्जुमा। हमसे अबूलुलीद ने बयान किया, उनसे शोबा ने बयान किया, उनसे इदी बिन साबित ने, उनसे अबू हाज़म ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने इंतकाल के वक्त माल छोड़े तो वो इसके वारिसों का है और जो कर्ज छोड़े तो वो हमारे ज़िम्मा है। सही बुखारी। किताब कर्ज लेने और कर्ज अदा करने का बयान। बाब कर्जदार की नमाज जनाजा का बयान। हदीस नंबर 2399। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अबू आमर ने बयान किया, उनसे फली ने बयान किया, उनसे हलाल बिन अली ने, उनसे अबदाल रहमान बिन अबी उमरा ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मोमिन का मैं दुनिया व आखिरत में सबसे ज़्यादा करीब हूँ। अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो, अन्नबी आउली बिलमुमिनीन मन आनफसहम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन से उनकी जान से भी ज़्यादा करीब हैं। इसलिए जो मोमिन भी इंतकाल कर जाए और माल छोड़ जाए तो चाहिए कि वरसा इसके मालिक हूँ, वो जो भी हूँ, और जो शख्स कर्ज छोड़ जाए या औलाद छोड़ जाए तो वो मेरे पास आ जाएं कि उनका वली में हूँ। सही बुखारी। किताब कर्ज लेने और कर्ज अदा करने का बयान। बाब अदायगी में मालदार की तरफ से टाल मटोल करना जुल्म है। हदीस नंबर 2400। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे मुअम्मर ने, उनसे हमाम बिन मनबा वहब बिन मनबा के भाई ने, इन्होंने अबू हरीरा से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदार की तरफ से कर्ज की अदायगी में टाल मटोल करना जुल्म है।